हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनक्राफ्ट कॉमर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ फंड डज नॉट कम अंडर लॉन्ग टर्म लोन? ऑप्शन ए इनवॉइस फाइनेंसिंग, ऑप्शन बी मॉर्गेज, ऑप्शन सी गवर्नमेंट डेट, ऑप्शन डी डिबेंचर्स। इन्होंने बोला डज नॉट कम अंडर लॉन्ग टर्म लोन। इसका करेक्ट आंसर है इनवॉइस फाइनेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज पास्ड एन एक्ट टू एंश्योर दैट द गुड्स एक्सपोर्टेड आर क्वालिटी वाइज अप टू द मार्क। What act was that? वो एक्ट कौन सा था? ऑप्शन ए एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1983, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1973, ऑप्शन डी एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्ट 1953। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आप ईयर भी याद रखिएगा। Next question, Dash is more concerned with the science of mankind and the study of human behavior as a whole. Issue like individual culture, organizational culture, comparative attitude and cross-cultural analysis etc. are the field of it. Option A psychology, option B social psychology, option C sociology, option D anthropology. इसका correct answer है option D anthropology. Next question, which of the following is not an advantage of automated accounting system? Option A, it can store large volume of data. Option B, it has a high development cost. Option C, it is accurate. Option D, it is fast. इन्होंने बोला है not an advantage, तो option B, it has high development cost, ये disadvantage है। Next question, small scale and large scale industry, these are the classification of industries on the basis of option A nature of activity, option B nature of goods produced, option C size of activity, option D level of investment। ये जो स्केल है स्मॉल स्केल लार्ज स्केल, ये साइज बता रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी साइज ऑफ एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकडोनल्ड्स ऑपरेट देयर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए फ्रेंचाइजी सिस्टम, ऑप्शन बी बोथ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी सिस्टम, ऑप्शन सी चेन सिस्टम, ऑप्शन डी लाइसेंसिंग सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिटेशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज? ऑप्शन ए लिमिटेड फाइनेंस, ऑप्शन बी लिमिटेड लाइबिलिटी, ऑप्शन सी स्टेबल एग्जिस्टेंस, ऑप्शन डी इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लिमिटेड फाइनेंस होता है। क्वेश्चन है, a worker was working in a factory, he noticed a leakage in the cooling system pipeline. The company suffered a huge loss due to this. Which of the following business risk is being exhibited here? Option A physical and technical cause, option B political cause, option C human cause, option D natural cause। इसका correct answer है option A physical and technical cause। Next question, which of the following represents range of period of commercial paper? Option A 7 days to 1 year, option B 20 days to 40 days, option C 60 to 90 days, option D 120 to 365 days। इसका आंसर है ऑप्शन ए 7 days to 1 year। कॉमर्शियल पेपर का पीरियड होता है 7 days to 1 year तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट रिप्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ all receipt and payment against outflow and inflow of goods and services abroad by the resident country. What is it called? Option A balance of trade, option B receipt of advance, option C balance of payment, option D cash inflow and outflow। इन्होंने बोला है represent an account of all receipt and payment, goods भी services भी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C balance of payment। क्वेश्चन है, द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 हैज डिफाइंड स्टॉक एक्सचेंज एज an association established for the purpose of assisting, regulating and controlling business of? Option A buying, selling and dealing in securities, option B buying, selling and dealing in goods and services, option C buying, selling and dealing in gold and silver, option D buying, selling and dealing in wheat, rice and sugar। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बाइंग, सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल which require the droid to make payment immediately on presentation is? Option A usance bill, option B foreign bill, option C side bill, option D bill of lading। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साइड बिल।
इसको डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज वन वेयर द फर्म पार्टिसिपेशन in the export import operation is minimum and most of the tasks are carried by middlemen. Option A, direct indirect importing. Option B, indirect exporting importing. Option C, re-exporting importing. Option D, direct exporting importing. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज EDI stands for? Option A, electronic data interface. Option B, earn deferred income. Option C, electronic digital interchange. Option D, electronic data interchange. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्वेश्चन है, X bought goods from Y for rupees 1 lakh less 10% trade discount and 5% cash discount. X ने 60% कैश दिया। हाउ मच कैश डिस्काउंट विल एक्स रिसीव? एक्स ने वाई से गुड खरीदे 1 लाख रुपए के, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, 5% कैश डिस्काउंट मिला, तो उसको कैश डिस्काउंट कितना मिला आप कैलकुलेट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, उस पर मिला 10% डिस्काउंट, तो वो हो गए 90,000 के। अब 90,000 में से 60% पेमेंट कैश करिए, तो वो हो गए 54,000। 54,000 में से अब इसका 5% डिस्काउंट का 5% डिस्काउंट, ये आ जाएगा 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2021 द चीफ सोर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू वॉज? ऑप्शन ए वैट, ऑप्शन बी GST, ऑप्शन सी सेल्स टैक्स, ऑप्शन डी एक्साइज ड्यूटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, GST। GST से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैक्स एम टू सबस्यूम प्लेथोरा ऑफ टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्स अक्रॉस द कंट्री एंड मेक गुड यूनिफॉर्मली प्राइज्ड अक्रॉस द कंट्री? ऑप्शन ए सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी GST, ऑप्शन सी वैट, ऑप्शन डी इनकम टैक्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, GST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंट्री? ऑप्शन ए ऑडिटर्स अकाउंट, ऑप्शन बी डेटर्स अकाउंट, ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी करंट अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, करंट अकाउंट। Current account reflects changes and transfers in the foreign assets and liability of the country. Next question, goods means all movable property. Option B, all immovable property. Option C, actionable claims. Option D, decree. इसका correct answer है all movable property. Next question, which tax is collected by पंचायत? Option A, sale tax. Option B, custom duty. Option C, टैक्स ऑन लोकल फेयर, ऑप्शन डी लैंड रेवेन्यू। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 73 अमेंडमेंट था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन टैक्स ऑन लोकल फेयर। आप सबको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव एंड बिलीव दैट यू कैन डू इट, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं, और इसी तरह के PYQ करने के लिए आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में आके फॉलो कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।